Hello friends, welcome to our YouTube channel Master Q Classes. I am Satya sir. ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଫିଜିକ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ସିରିଜ୍ର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 15ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଉ ତା'ର ଅପସନ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇପାରିବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଆରିଥମେଟିକ୍ ତା ସହିତ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାसेस କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଏନି ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ କ୍ଲାସ୍। So first question is how many fundamental quantities are there in physics? देखो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ କି ସମୟ ଦେବି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ଫିଜିକ୍ସରେ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି 5 ନା 6 ନା 7 ନା 2 କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ କେତେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଅଛି ଆମର ଫିଜିକ୍ସରେ। ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମେ ସିରିଜ୍ କରୁଛେ ଏବଂ 15ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋ ସବୁ କ୍ଲାसेस ଏଥିରେ କରିବା। ତ କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ରେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବୋଲି କହୁ ସେଇଟା ଅଛି 7ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 1ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 7। ବୁଝିପାରିଲେ କେତେଟା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଆମର 7ଟା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ମିଟର, ତାପରେ ହେଲା ମାସ୍ର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା କେଜି, ତାପରେ ଅଛି ଟାଇମ୍କୁ ମୁଁ ଟି ଲେଖୁଛି ଟାଇମ୍ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଆମ୍ପିୟର ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ମୁଁ ଟି ଲେଖୁଛି ଟେମ୍ପରେଚରର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଆମର କେଲଭିନ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବା, ତାପରେ ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆମର ଆସିବ ଯାହାର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ସିଡି ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ତାପରେ ଆସିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହାର ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ମୋଲ୍ MOLE ମୋଲ୍। ସୋ କେତୋଟି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି 7ଟା ଲେନ୍ଥ ମାସ୍ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଲା ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେଭଲପ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍। କିଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଯିବ ଆନ୍ସର୍ ଭାବନ୍ତୁ। ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେଭଲପ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍। ଡକ୍ଟର ହୋମ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ନା ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ, ଡକ୍ଟର ରାଜାରାମନ ନା ଡକ୍ଟର PK ଅୟଙ୍ଗର। କ'ଣ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହୋମ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଆମର ହି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ହୁ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଆୱାର ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ରାଇଟ୍। क्वेश्चन नंबर 3 चलन जीवा देला व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट। कोलडा अधिका हीट दिए देखो बिटुमिनस ना लिग्नाइट ना आंथ्रासाइट ना पीट 4 प्रकार कोल अच्छे आमर तो यादू कोटाक कौन करे अधिका हीट प्रोडक्शन करे कौन हो आंसर माने भल क्वालिटीर कोल बिटुमिनस ना लिग्नाइट ना आंथ्रासाइट ना पीट देखो आंसर हो ऑप्शन नंबर सी आंथ्रासाइट। ठीक अच्छे यही कोलटी कौन करे अधिका हीट पर यूनिट आमर प्रोडक्शन करे। आंथ्रासाइट आमर कार्बन अमाउंट केते अच्छी मन देखो 86 टू आई थिंक 97% अच्छी आउ लिग्नाइट रे केते अच्छी मन देखो 30% आउ बिटुमिनस रे 50 टू 70%। ठीक अच्छे मन रखु बेले बेले एग्जाम रे फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आसे हेरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 4 देला व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहतु क्वेश्चन नंबर 4 रो कौन हम माइक्रोवेव्स ना रेडियो वेव्स ना इन्फ्रारेज ना फ्रिक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज कौन हो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे को वेव। क्वेश्चन नंबर 4 कौन हो आंसर आंसर हो ऑप्शन नंबर ए माइक्रोवेव्स। देखो रेडियो वेव्स देती इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
ठीक अच्छे आ इनफ्रारे आमती फ्रिक्वेन्सी 101 सीरीज एमती किसी ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देला व्हाट इज फाउंड इन फ्रिक्वेन्सी मॉड्यूलेशन। फ्रिक्वेन्सी मॉड्यूलेशन रे कौन देखा जाए फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी ना फिक्स्ड डायमेंशन चेंज इन फ्रिक्वेन्सी एंड डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन ओनली। फ्रिक्वेन्सी मॉड्यूलेशन जहाँ को एफएम बोली आम कहे कौटा आसे क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कौन हो कहतु क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी कहीं फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी हेल्ले ही आमर कौन हम चैनलटा हुए आप जानते हैं ना एफएम रे विभिन्न प्रकार चैनल भी सब अच्छी है से फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी उपर काम कर। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द स्पीड ऑफ कार गेट्स डबल। कार स्पीडटा डबल हो गला ताले काइनेटिक एनर्जी कौन हम काइनेटिक एनर्जी कौन हम कहतु आप जानते दी प्रकार एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी पचारुच्ची केतबेले हम कार जितेबाला तार स्पीडटा कौन हो डबल हो कौन हो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो ना 2 टाइम्स हो ना हाफ हो ना 1/4 हो कौन हम करेक्ट आंसर चिंता करूँ कौन हो देखो ये 4 टाइम्स केमी 4 टाइम्स है मुझे एलाबोरेट करदे देखो काइनेटिक एनर्जी आम जाने हाफ एम भि स्क्वायर एटा फर्मूला ना तो ये आम वेलोसिटी कौन है डबल हो गला सी पचारा जदि डबल हो गला ताहले कौन हम ताहले मुझे लिखिपारि के इज इक्वल टू 1/2 एम ये 2 भि स्क्वायर मुझे लिखिपारि राइट तो 1/2 एम जदि 2 भि स्क्वायर मुझे लिखुची ताहले काइनेटिक एनर्जी को मु 4 इंटू एट स्क्वायर है ना 4 इंटू हाफ एम भि स्क्वायर तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो ना तेनाली आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7 आसन क्वेश्चन नंबर 7 कौन देला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी बुझिपारे ये फंडामेंटल क्वांटिटी मीन फिजिकल क्वांटिटी कौटा हम कहतु मुझे कही पूर्व 7टा अच्छी लेंथ मास टाइम करेंट टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी आउ अमाउंट ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 कौन पचारा कौटा या भितर गोटे फिजिकल क्वांटिटी कौटा हम ऑप्शन नंबर कौन जल्दी ऑप्शन नंबर बी हो टाइम टाइम यूनिट कौन मुझे टाइम यूनिट थिला कौन सेकेंड एसआई यूनिट तार सिंबल कौन थिला एस मन एस तो अच्छा मत कहतु लुमिनस इंटेंसिटी मुझे कौन कही कैंडेला कौन कही कैंडेला कही जार सिंबल है सी डी मन रखिए यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लगे मोल MOLE मोल आउ लेंथ मीटर आप जानते हैं मास केजी टाइम सेकेंड मुझे कहली करेन्ट रहा एम्पियर जो मैं जानना से मन रखु करेन्ट एम्पियर बेले बेले फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट और सिंबल पचार दिए तेणु आपने यहाँ मन रखा चेष्टा करूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी एटा मत मुंडवर्च करवा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी इज डबल गोटे कैपिलरी ट्यूबर डायमीटर जदि डबल होची ताल तार राइज वाटर राइजटा कौन हो 2 टाइम्स हो ना सेम रहा ना 4 टाइम्स रहा ना हाफ रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कौन हम देखो क्वेश्चन नंबर 8 रही हाफ अधा हो बुझिपारे आप रिलेशन जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बुझिपारे तेणु आमको जब गोटे डबल करवा तार यहाँ हाफ हो तार। क्वेश्चन नंबर 9 देखो व्हाई द निडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली गोटे आयरन कंटाटे आम जो पानी उपर रखा से धीरे किना आप रखिए से पानी उपर कौन हम भाषब सरफेस उपर कौन पाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट विल रिमेन अंडर द वाटर it will dispense more water than its weight. Option B, the density of needle is less than that of water due to surface tension ना due to its shape कहा जो से भाषो कहतु आयरन गोटे निडलटे आयरन निडलटे भाषो कौन पाई देखो ये आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप जानते हैं जे सरफेस जब आम रखा तो सरफेस प्रत्येक जो आम रहा कौन मलिक्यूल्स रही से उपरू कौन करे गोटे फोर्स पकईक रखिए बुझिपारे तो तेणु से बुड़बनी जब आम जेंटली रखा जोर से पकड़े तो बुड़ीज। क्वेश्चन नंबर 10 देला देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वाल टू क्वेश्चन नंबर 10 कौन हम 1 किलोवाट आवर केते हम कहतु 6.3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स ना 6.3 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 6
So what will be the correct answer? Question number 10, kilowatt hour. 1 kilowatt hour देखो ये आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर 10 टू द पावर 6 केमिति है मुझे कही दूची 1 किलोवाट आवर हूँ 1000 वाट आवर ठीक अच्छे आ 1 आवर है 60 मिनिट ठीक अच्छे आ 1 मिनिट आम जाचे 60 सेकेंड तो गोटे घंटे केते सेकेंड है 60 इंटू 60 तो 3600 3600 सेकेंड हूँ ठीक अच्छे अच्छा 1 आवर है आमर 3600 सेकेंड ओके तो 1 किलो वाट आवर आमर हो 1000 इंटू 3600 सेकेंड तो कते गला 36 आमर ये दीटा जीरो अच्छी ये 3टा जीरो अच्छी तो मैंने 5टा जीरो हो 3 4 5 वाट सेकेंड जब यहाँ आम सिंप्लीफाई करवा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स हो बुझीपारे जो न बुझीपार से ओनली मन रखु 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 10 टू द पावर 6 मान ऑप्शन डी हो आंसर क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो जो आम रेनबो देखुचे कौटा ठीक है स्टेटमेंट रू कहतु कौन हम ऑप्शन ए देला वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स आम सन को फेस करचे और रेन ड्रॉप को फेस करचे एमती कले आम रेनबो देखू कि देखिए ऑप्शन नंबर बी द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेनबो रेन ड्रॉप्स सन आम पछे रहिबो आमे रेन ड्रॉप्स को देखिबा आपण जानछन रेनबो रे केतेटा कलर 7टा कलर अछि आ रेनबो फॉर्मेशन केमती हुए जेतबेले सनलाइटटा वेरी टाइनी रेन पार्टिकल्स ऊपर पड़े तार रिफ्रैक्शन से देखा जाए नहीं तो सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स तो यहाँ जो करेक्ट आंसर इन लाइट रेनफॉल यहाँ हेनी द स्काई रिमेन्स क्लीयर ना यहाँ भी हेनी नहीं तेणु ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर सन आम पछे रमें रेन ड्रॉप्स को देखुवा से भाया आम आगे कौन देखिपर रेनबो को देखिपर देखो फ्रेंड्स आम आम चैनल आपंपाई इंग्लिश मैथमेटिक्स यहपरी बहुत प्रैक्टिस नहीं आसचु आप चैनल विजिट करूँ प्रतिदिन ये सब प्रैक्टिस करूँ आ कौन सबू वीडियो को आम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने चेष्टा करूँ और जिते मात्रा रोचे आप सांघातिक सहित आम वीडियो को पहुँचे दिंतु यहाँ आपको भी हेल्प कर चैनल ग्रो करने हेल्प कर क्वेश्चन नंबर 12 द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म गोटे प्रिज्म रे जो डिफरेंट कलर अच्छे प्रिज्म आप देखते हैं एम गोटे व्हाइट लाइट गला बेले कौन हुए ये हुए ना 7टा कलर बाहर ना लाइट द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज कॉल्ड यहाँ कौन जो हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना डिस्पर्सन ऑफ लाइट ना डिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट ना रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट कहतु कौन हम से प्रोसेसटा कौन कहते क्वेश्चन नंबर 12 ये जो ऑप्शन नंबर बी से प्रोसेसटा कहते डिस्पर्सन ऑफ लाइट ना कि डिफ्रैक्शन ना कि रिफ्लेक्शन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13 question number 13 is asking a boat will submerge when it displaces water equal to its own very interesting question a boat will submerge when it displaces water equals to its own कौन हम बोटा सबमर्ज रहिबो कौन हम वॉल्यूम आंसर कौन हम वॉल्यूम ना वेट ना सरफेस ना डेंसिटी क्वेश्चन नंबर 13 कौन हम कौन हो एनीथिंग विल फ्लोट इफ इट इज सेफ्ट टू डिस्प्लेस इट्स ओन वेट ऑफ वाटर बिफोर इट रीचेस द पॉइंट वेयर इट इज सबमर्ज ठीक अच्छे ना सो हियर द आंसर विल बी वेट ऑप्शन सी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 रा कौन हम आंसर देला द स्नो on the mountains does not melt all at once when it is heated by the sun देखो माउंटेन उपर पूरा स्नो अच्छे ग्लेशियर जोटा अच्छे तो सहीटा कौन हो मेल्ट होनी खरा जोर जिते जोर हेले भी बेसी स्पीड से मेल्ट हुए कौन पाई इट बिकम्स वेरी हार्ड या इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन ना इट हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑप्शन डी इट हैज हाई लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कौन हो क्वेश्चन नंबर 14 देखो मन रखु आइस ना हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अच्छे तेणु सन हीटा सफिसीयंट हुए मेल्ट करने तो
तो सेटा धीरे धीरे मे भी मेल्ट हो पारे किंतु पूरा मेल्ट हुएनि सेमिति तो आमर ग्लोबल वार्मिंग हेले सबुतिक ग्लेशियर तले जाता तेणु सेमिति हुएनि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू लाइट कलरटा रिलेट करे क्या ऊपर एम्प्लीट्यूड ऊपर ना फ्रिक्वेन्सी ऊपर ना क्वालिटी ऊपर ना वेलोसिटी लाइट कलर कौन हुए वेलोसिटी वेलोसिटी तो हेनी क्वालिटी भी हेनी फ्रिक्वेन्सी हेनी एम्प्लीट्यूड ऊपर डिपेंड करे क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो एम्प्लीट्यूड ओके। सो आम 15टा क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कले एमसीक्यू आपने मो सहित प्रैक्टिस करुले यार नेक्स्ट पार्ट मुझे आसवि नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड कीप वाचिंग आवर चैनल थैंक यू।